Namaste. Welcome back once again to all of you. Okay. The thing is, we have already started the chapter agriculture, and in that chapter, we have studied about what is agriculture. Okay. Why different types of agricultures has been performed in India. All right. In that we have studied about primitive subsistence farming. Okay. All right. Intensive subsistence farming. We have also studied about commercial farming, and in the commercial farming we have also seen the plantation farming. All right. Okay. And after all, since India is a very vast country having much bigger area, okay, a lot of diversities is seen in India. That is why they were having different climatic seasons. That is why there were different cropping patterns. All right. In those cropping patterns, we have studied about what are kharif crop, what are rabi crop, and what are jaid crop. All right. Okay. Now today we will specially discuss about द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया. ऑल राइट. मेजर क्रॉप्स. ध्यान रखना है कि इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा डेटा को लेकर के पढ़ रहे हैं, है ना. तो व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मेजर क्रॉप, इसका मतलब है, थोड़ा सा आप देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली रिगार्डिंग प्रोडक्शन and consumption, the two major crops are there. Two major crops. All right. These crops is also known as staple crops. First one is your RICE, rice, and the second one is your WHEAT, wheat. Okay. देखिएगा, इसमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस भी देखेंगे. ऑल राइट. बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा. ओके. The first one is, this rice is a kharif crop. Rice is a kharif crop. Okay. While wheat is a rabi crop. Rabi crop. All right. अब जब ये खरीफ है तो it requires high temperature. It requires high temperature. All right. Especially regarding above than 25 degrees Celsius or 25 degrees Celsius. All right. Rainfall must be above 100 degree, 100 centimeter, above 100 centimeter. All right. Okay. Now kharif crop, high temperature 20, it needed high temperature 25 degrees Celsius, above 100 centimeter rainfall. All right. And the rice is especially grown in India, especially in northeast region. Okay. Eastern region. Okay. And somewhat you can say in especially in MP. The major rice producing state of India are, what's Odisha. Okay. पंजाब, यूपी, MH, सॉरी, MH के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, MH नहीं है इसमें. ऑल राइट. यूपी के अलावा आपका छत्तीसगढ़ को आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा. छत्तीसगढ़ को राइस बाउल कहा जाता है. WB West Bengal and Tamil Nadu. These are the states majorly known for the rice production. All right. असम में जो कुछ राइस की जो कुछ खास किस्में हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें औस, अमान एंड बोरो आपको देखने को मिलते हैं. औस,
अमान एंड बोरो, ये स्पेशल राइस है आपकी राइस की फसलें। ओके, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, ध्यान रखिएगा, आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। अब ये समझने का प्रयास करिएगा, इट इज नीडेड टू बी अंडरस्टूड दैट सिंस we have developed so much regarding the irrigation facilities, okay, the state which are capable enough regarding irrigations, okay, there are huge network of canals are also there. That is why rice also started cultivating in the dry regions और जहाँ irrigations fed regions हैं, okay, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे, जैसे एमपी की मैं बात करूँ तो एमपी में भी राइस का प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ जहाँ पर आ गए हैं तो उसके कारण राइस का प्रोडक्शन नॉर्मल एरियाज़ में भी हो रहा है। ऑल राइट, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर यू कैन से इस, हाँ ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज योर रबी क्रॉप। ये रबी क्रॉप है तो स्पेशली आप ये समझ लीजिए विंटर सीजन में ये बोई जाती है ऑन बिगिनिंग ऑफ द विंटर, और इसको फ्रेश सनलाइट चाहिए, मतलब प्रॉपर सनलाइट जिसको आप कहते हैं, प्रॉपर सनलाइट। इट रिक्वायर्ड प्रॉपर सनलाइट फॉर द राइपनिंग ऑफ द wheat. All right, 10 to 15 degree Celsius temperature it requires, okay, and more than 125 degree centimeter rainfall. No, sorry, not 125. It requires 60 to 75 centimeter rainfall. 60 to 75 meter rainfall, okay. 60 to 75 centimeter rainfall, okay. Moist atmosphere it requires, okay. Major wheat producing states are Punjab, क्यों भाई पंजाब? When we talk about the production of rice as per hectare, पंजाब comes first, okay. टोटल प्रोडक्शन में देखेंगे तो यूपी एंड एमपी। द थिंग विच आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू, you know what, when we talk about the rice wheat production, especially lately for the last 3 years, MP has been growing as the fastest or the highest productive state of wheat, okay. यूपी, एमपी, पंजाब, बिहार, ओके, राजस्थान, तो ये ऐसे स्टेट हैं साहब जहाँ पे आपको वीट प्रोडक्शन देखने को मिलता है, प्रॉपर वीट प्रोडक्शन आपको देखने को मिलते हैं। वीट प्रोइंग जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपके, ठीक है। गंगा सतलुज स्पेशली इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? गंगा सतलुज प्लेन, ओके। ब्लैक सॉइल में भी इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो गंगा सतलुज जोन और ब्लैक सॉइल्स में इसको देखने को आपको मिलता है, ठीक है। मैं बात कर रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर क्रॉप्स। तो ये जो राइस है और ये जो वीट है, ये इंडियाज़ 2 स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली क्रॉप है। ऑल राइट, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर मिलेट्स। व्हेन आई टॉक अबाउट मिलेट्स, तो मिलेट्स में जब मैं बात करता हूँ सामना, तो 3 आते हैं। एक आएगा आपका JWAR ज्वार, दूसरा आपका आएगा BAJRA बाजरा, तीसरा आपका आएगा ज्वार बाजरा, एंड द थर्ड वन इज़ योर रागी। रागी क्योंकि पर्सनली आई हैव बीन इन द सदर्न स्टेट, ठीक है, उतना ज़्यादा चाहिए इसको, टेम्परेचर प्रॉपर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रागी एक ऐसा, अच्छा थोड़ा सा मिलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर रागी के बारे में बात करते हैं। मिलेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक तो क्वार्स ग्रेन है ये, क्योंकि रफ पैचेस में इसको या इसके कलर टेक्सचर के कारण इसको क्वार्स ग्रेन कहा जाता है। हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू, ये आपको समझना है, हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू,
ओके, हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू इसमें होती है आपको, ठीक है। तो ज्वार की बात करेंगे तो ज्वार आपको कह सकते हैं जहाँ इरिगेशन की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना भी हो वहाँ भी आपको ज्वार हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। सैंडी सॉइल में भी हो जाएगा, रेड सॉइल में भी हो जाएगा, तो ये देखने को आपको मिलता है। अच्छा, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग एरियाज आर MP, MH, ओके, एंड राजस्थान। तो दीज आर द, ठीक है। बाजरा की बात करूं तो ये ब्लैक सॉइल में हो जाता है, रेड सॉइल में हो जाता है, सैंडी सॉइल में भी हो जाता है। तो ऐसे सॉइल्स में हम इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। MH महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में भी है, ओके, और आपका MP में है, UP में भी इसको देखने को मिलता है प्रोडक्शन। ऑलराइट, तो दीज आर द, व्हेन इट कम्स टू रागी, रागी एक बढ़िया फसल है, साउथ इंडिया में बोई जाती है। स्पेशली मैं बात करूं, ये इसका कर्नाटका में प्रोडक्शन होता है जम के, तमिलनाडु में भी प्रोडक्शन इसको देखने को मिलता है, और केरला सदर्न स्टेट में, AP में भी आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश में भी, तो रागी का प्रोडक्शन आपको देखने को जनरली मिलता है, ओके। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ग्रोन ऑन ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, है ना, लोमी सॉइल्स, कहीं भी इसका प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, लोमी सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स एंड वेरियस काइंड ऑफ सॉइल्स। ऑलराइट, ठीक है। तो दीज आर द मिलेट्स वी हैव सीन। नाउ कमिंग टू द मेज़, मेज़ की बात करते हैं। मेज़ की बात करेंगे तो मेज़ भारत की पहली ऐसी फसल है जो फूड के लिए भी यूज़ की जाती है और फॉडर के लिए भी यूज़ की जाती है। फॉडर समझिएगा, जो ऐसा फसल विच आर नॉट गिवन टू एनिमल्स, ओके, जानवरों को खिलाने के लिए भी जो इस्तेमाल की जाती है, फूड एंड फॉडर, ओके। स्पेशली ये एल्यूबल सॉइल्स में उगाई जाती है, एल्यूबल सॉइल्स में। टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, ओके। मेज़ जो मेजर प्रोड्यूसिंग आपके हैं, MH राजस्थान, UP, MP, बिहार, ओके। इसको भुट्टा कहा जाता है, ये समझिएगा। बहुत सारी अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है भुट्टा, ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज योर पल्सेस। पल्सेस की बात करूं, पल्सेस दाल हैं। अब पल्सेस की बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको पहले बताना ज़रूरी है। पहली बात तो मैं बता दूं, पल्सेस ऐसी क्रॉप है जिसमें हाई प्रोटीन होता है, ओके। दूसरा, ये लेजुमिनस प्लांट हैं, तो लेजुमिनस अगर प्लांट हैं ये, तो इनको हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ लेजुमिनस प्लांट्स फॉर द क्रॉप रोटेशन। साहब क्रॉप रोटेशन क्यों? क्रॉप रोटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हाई लेजुमिनस प्लांट्स होने के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। दीज हेल्प्स डूइंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिगेन हो जाती है, ओके। पल्सेस की जब आप बात करेंगे तो अलग अलग पल्सेस आपको नज़र आएगी। तुअर दाल नज़र आएगी, जिससे आप अरहर की दाल कहते हैं। मूंग नज़र आएगी आपको, ठीक है। मसूर नज़र आएगी आपको, ग्राम नज़र आएगी आपको, ठीक है। तुअर, मूंग, मसूर, ग्राम, और तो कोई दाल नहीं भूल रही है, ठीक है, एक्सेट्रा। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं, MP इज़ द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ दाल। MP, UP, AP, MH राजस्थान एंड बिहार, राजस्थान एंड बिहार, ओके, ओके। So these are the things which we need to cover in this particular lectures. All right, we have studied about the major food grains. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे अदर देन फूड ग्रेन, जिसमें आपका शुगर केन आएगा, कॉटन आएगा, जूट आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बाद में बात करते हैं।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।